हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12th में ओसी में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सेक्शन डी था उसका हमने रिवीजन कंप्लीट किया था। आज के इस वीडियो में हम हमारा सेक्शन ई जो है, जो आपको आपके चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 अकॉर्डिंग टू द बोर्ड्स ब्लूप्रिंट के हिसाब से आने वाले हैं, उसका हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। और ये रिवीजन जो है वो आपको आपके लिए नोटबुक में भी लिखना है। तो अब हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 का जो सेक्शन ही ई है उसका हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेक्शन ई में जो हमारे बिग क्वेश्चंस होते हैं, बट यहाँ पे मैंने मेरी बुक में शॉर्ट में आंसर्स लिखे हैं, खाली पॉइंट्स लिखे हैं। आपको आपकी नोटबुक में ये जो पॉइंट्स हैं उसकी डिटेल में भी इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी है। यहाँ पे हम डिटेल में इंफॉर्मेशन जो है वो समझेंगे तो सही, बट आपको वो जो डिटेल आंसर वो आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट यहाँ पे हम मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग इज स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रिलेशन विद द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे स्टाफिंग मीन्स कि हम वर्कर्स को मेंटेन करके रखें हमारे बिजनेस में। सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है, स्टाफिंग मीन्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, ट्रांसफ़र एंड पोस्ट रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे उसके हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की स्टाफिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग. Second is perennial process. Organization cannot exist without employees. As long as organization activities exist, employee and staffing also exist. Third is concurrent with human relation. Obviously we are doing staffing, or staffing is done for the human being, so it is also connected with the human relations. Fourth point is staffing is a dynamic process. Because of a proper staffing, all the organization staff are become dynamic. Fifth is related with the managerial functions. Staffing is also related with other managerial functions like planning, organizing, directing, coordinating, because we are doing a work with the human beings, and staffing is done for the achievement of जो हम planning, organizing, etc. Sixth point is wide scope. Staffing is not merely activity of for labor welfare, but it is also connected acquiring, training and developing them. इस तरह से देन आफ्टर सेवन्थ पॉइंट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. स्टाफिंग इज नॉट अ expense but it is an investment, because we are doing employment, giving employment to the workers, so it is an investment for us. Then after, next question is explain the importance of staffing. Staffing occupies an important place in the process of management. As more industries have been developed, the importance of staffing has been increased. Also, organization without staff is like mere skeleton, and the intimate machines can be increased production, but employee can give even better result. In comparison to other factor of production, the future of business enterprise depend much on its staff. Staffing is only a living factor of productions. Personnel cannot be considered as a physical resources. That means कि यहाँ पे हम जितने भी हमारे मैनेजरल फंक्शंस हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? स्टाफिंग के, क्योंकि हमें वर्कर्स के साथ काम करना पड़ता है, उनके साथ डिस्कस करना पड़ता है सारी चीज़ों के बारे में, उन्हें ट्रेनिंग देना, उन्हें डेवलप करना, एक्सेट्रा. एंड वी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पर्सनल, एज अ रिसोर्स, बट इट इज़ अ फिजिकल रिसोर्सेज. वी कैन नॉट कंसिडर द personal as a physical resources, because they have feelings, self-respect, intelligence, understanding and different skills, etc. And experts have rightly said, mind your men will mind for you. Following points are to be considered as importance of staffing. First is driving for staffing is a very important function of every business. Second is dynamic process activity. Staffing is a dynamic process. It perform all the activities of the business. Important for other function of management.
मतलब कि यहाँ पे हम जितने भी फंक्शन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें हम स्टाफिंग के बिना नहीं कर सकते हैं। लिम्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, मतलब कि यहाँ पे जैसे प्लानिंग को हम ब्रेन कहते हैं कि जो सोचने का कंप्यूटर, इसी तरह से स्टाफिंग इज कंसिडर्ड एज अ लिम्स for a business enterprise. Job satisfaction among the staff due to staffing, complaints, activities and problem of the employees can be understood and it can be easily solved. Second, then after is harmony in relations, कि हम easily उसके through relations maintain कर सकते हैं. Increase the prestige of business organization and continuous process. It is a continuous process. देन ऐसा नहीं कि एक बार हम स्टाफिंग कर लें, बट जैसे जैसे कोई पुराना स्टाफ चला जाता है तो हम फिर से उसकी स्टाफिंग करते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्रूटमेंट. Discuss in detail the internal and external resources of recruitment. Recruitment is a continuous process. Recruitment is to be made when a new enterprise is established, when an existing unit expanded, or when an employee resigns, dies or retires. कि जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट कब होती है कि जब न्यू एंटरप्राइज स्टार्ट हो, या कोई एग्जिस्टिंग यूनिट एक्सपांड हुई हो, या कोई पुराने जो एम्प्लॉयज़ है वो रिज़ाइन कर दे, डाई हो, उनकी डेथ हो जाए वो, या फिर वो रिटायर हो जाए तब. अब यहाँ पे हमें मीनिंग दिया हुआ है. इन अ ऑर्डिनरी सेंस रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द प्रोबेबल एम्प्लॉयज एंड मेकिंग देम अप्लाई फॉर द job. That is the meaning of recruitment. And in a broader sense, recruitment is the process of acquiring at the right time, right number, in a right place persons with the right qualifications. मतलब कि हम सही टाइम पे सही जगह पे सही पर्सन के अपॉइंटमेंट करना, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ रिक्रूटमेंट. अब हम उसके सोर्सेज जो हैं वो हम देखते हैं. Internal sources are promotion, transfer, friends and relatives of employee, recalling retrenched employees, promotion with transfer and waiting list. That is the internal sources. Then after external sources are through advertisement, through employment exchange, through education institution, through trade unions, through contractor and jobbers, recruitment etiquette and modern method. That is the sources of recruitment कि जहाँ पे हम हमारे एम्प्लॉयज़ को जो इजीली हम ले सकते हैं. उसके बाद का हमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है. एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन आर एज अंडर वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग, रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, टेकिंग नेसेसरी टेस्ट, उसमें भी IQ टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट. Then after fourth point is personal interviews, fifth is checking reference, sixth is primary selection, seventh is physical examination, eighth is appointment letter and ninth is introduction into organization allotment of वर्क. मतलब कि हम सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं, उनकी एप्लीकेशन लेते हैं, उस एप्लीकेशन को हम स्कैन करते हैं, उसके बाद उनका टेस्ट लेते हैं. टेस्ट लेने के बाद हम यहाँ पे उनके रेफरेंस जो होते हैं वो रेफरेंस हम चेक करते हैं फर्स्ट. उसके बाद हम प्राइमरी सिलेक्शंस करते हैं उनका, फिर उनके एग्जामिनेशन फिजिकली हम टेस्ट करते हैं. अगर वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं फिर हम अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं. लास्ट में हम बिजनेस के साथ उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं. देन आफ्टर अवर फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन the meaning and importance of training. In the general term, training means providing theoretical and practical knowledge with the reference to the work of the employees. As stated by the expert, training means giving up-to-date information about the organization and also increase efficiency with aptitude, attitude and technical skills of the employees. In short, training means imparting knowledge and education with the objective of gaining proficiency in the business. अब यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस दी गई है ट्रेनिंग की कि मॉडर्न इन्फॉर्मेशन विल बी गिविंग सेफ्टी, इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन, रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर रेट, इंक्रीज इन प्रॉफिट, रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय एंड अदर बेनिफिट. मतलब ट्रेनिंग का मीनिंग क्या होता है कि हम वर्कर्स को अप टू डेट इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें बिजनेस के साथ जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है उसे हम इजीली अवेयर करें. दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेनिंग. और उसके यहाँ पे हमें इम्पोर्टेंस भी हमने देखी. अ सेपरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैज़ टू बी मेंटेन फॉर
Training and special officers have to be appointed by the big enterprise to provide training to a new employees. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने के लिए हम सेपरेट डिपार्टमेंट बनाते हैं, वर्कर्स के अपॉइंटमेंट करते हैं ताकि हम हमारे वर्कर्स को जॉब सेटिस्फेक्शन जो वो और भी ज़्यादा अच्छे से दे सकें. देन आफ्टर लास्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस. डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियोरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड. अब ट्रेनिंग हम वर्कर्स को देते हैं, डेवलपमेंट हम क्या करते हैं कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू अ प्रोग्राम विच हेल्प्स टू अचीव द प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजिंग बाय इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द हेड्स. कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम्स अरेंज करते हैं कि जिसके थ्रू वर्कर्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनकी डिसीजन कैपेसिटी बढ़ सके. अब यहाँ पे हमने उसकी इम्पोर्टेंस दी गई है. Importance of development is increase in technical knowledge, research and ideologies, development of the organization, optimum use of resources, solution of problems, effective supervision, reduce stress and development program. अब उसके कारण क्या होता है, डेवलपमेंट के कारण कि उनकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो बढ़ती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है. एज अ रिज़ल्ट हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन उसका डेवलपमेंट होता है. जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसे हम ईजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली हम वर्कर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हैं. एज वेल एज अगर हमें यहाँ पे हमारा जो स्ट्रेस होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो कम होता है एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के कारण वो डेवलप भी होते रहते हैं. ये तो किया हमने 5th चैप्टर का हमारा जो रिवीजन था वो. अब हम हमारा जो 6th चैप्टर है डायरेक्टिंग, उसके बारे में हम यहाँ पे उसका जो सेक्शन ई है उसका हम रिवीजन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डिफाइन डायरेक्शन एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स. डायरेक्शन मीन्स टू गाइड द वर्कर्स, मेक देम अवेयर ऑफ द वर्क, सुपरवाइज देम एंड मेंटेन देयर एंथुजियाज्म फॉर द वर्क. अब यहाँ पे हम डायरेक्शन का मीनिंग हम बोल सकते हैं कि वर्कर्स को हम प्रॉपर गाइड दें, उन्हें अवेयर करें बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, उन्हें सुपरवाइज करें, उनका जो एंथुजियाज्म है उसे इंक्रीज करें. कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन एज बिलो. गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, functions at every level of management. Third is continuous process. Fourth is observation of functions. Fifth is wider scope. Sixth communication. Seventh is motivation. Eighth is flow of direction and ninth is managerial function. मतलब कि यहाँ पे गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है हमारी. एवरी फंक्शन, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्शन जो है खाली मिडल लेवल को ही देते हैं, हम टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, मोटिवेट करते हैं बहुत. और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमारी और भी ज़्यादा इजीली हो सकती है. यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस दिए गए उन सारे क्वेश्चंस को मैंने खाली पॉइंट वाइज आंसर लिखे. आपको ये सारे क्वेश्चंस में जितने भी पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं या सारे पॉइंट्स के आपको डिटेल में आंसर जो है वो लिखने हैं. सेकेंड क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स. मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल्स टू परफॉर्म एक्शन एंड टू मेक इट पॉसिबल टू हैव मैक्सिमम वर्क सेटिस्फेक्शन. कि यहाँ पे हम वर्कर्स का जो भी एंथुजियाज्म उससे हम बूस्ट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करें और उनको जो मैक्सिमम जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल सके. दैट इज़ कॉल्ड अ मोटिवेशन. अब उसके कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे दिखे. इंटरनल फीलिंग, psychological concept, increase in efficiency of the employees, continuous process, reduction in labor turnover rate and achievement of good. यहाँ पे goals के जो भी हमारे goals है उसे हम easily अचीव कर. wider scope, adopting changes in organization, tool to get operation, cooperation, positive attitude and one of the function of management. Directing also one of the function of management. Then after third question is explain the Maslow's hierarchy of need with diagram. अब यहाँ पे hierarchy needs दी गई हैं. Men's need are varied. These needs are decided on the basis of his mental status. He is motivated if this work if his needs are satisfied. Many psychologists and management experts have made studies and formulate principles to arrange the needs in a proper order. The humanist psychologist Abraham Maslow has presented hierarchy of needs in his article Principle of Human Motivation in 1943. Such a 5 needs are arranged as per their priority. अब यहाँ पे जैसे जैसे ह्यूमंस की जो नीड्स सेटिस्फाइड होती जाती है वो और भी ज़्यादा मोटिवेटेड होते जाते हैं. एज अ रिज़ल्ट वो सारी चीज़ों को वो और भी ज़्यादा नीड्स को सेटिस्फाइड करने की ट्राई करते हैं. अलग अलग मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं, साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने
उन्होंने नीड्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने की कोशिश की। बट इन 1943 जो अब्राहम मास्लो नाम के जो ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे नीड्स जो है वो अरेंज करके दी हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है और उसके साथ में यहाँ पे हमने 5 नीड्स जो वो अलग से लिखी है। फर्स्ट इज साइकोलॉजी एंड प्राइमरी नीड्स। प्राइमरी नीड्स दैट मीन्स कि हमारी जो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग की जो नीड्स होती हैं वो। सेकेंड इज सेफ्टी नीड्स की जो ऑब्वियसली हमारी ये नीड्स सेटिस्फाइड हो जिसके बाद सकते हैं कि हमारा सेफ हो जाए। फिर सोशल नीड्स मतलब कि सोशली हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रह सके। स्टीम नीड्स एंड स्टेटस नीड्स एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स मतलब कि यहाँ पे ये दोनों नीड्स में हम लोगों के बीच में और भी ज़्यादा अच्छे से कनेक्टेड रहें और लोगों के साथ सोशल रिलेशन मेंटेन करना, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस नीड्स। उसके बाद का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, डिफाइन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर बोन फॉर स्किल्ड एंड प्रोफेशन एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स सिंस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बूस्ट देयर एंथुजियाज्म, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड efficiency. It gives financial security to the employees and raises his social status. Owners having progressive and professional attitude of the unit provide one of the following financial incentive to the employees. First is profit sharing, second is co-partnership, third is promotion, fourth bonus, fifth is commission, sixth prize and suggestion and advices. यहाँ पे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब कि हम वर्कर्स को फाइनेंशियली हम उन्हें स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। एज अ रिजल्ट उनका कॉन्फिडेंस, उनका करेज, ये सारी चीज़ें भी बढ़ती हैं। और यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हमें दी गए, प्रॉफिट में हम शेयर दें, बिजनेस में को पार्टनरशिप दें, प्रमोशन दें, उन्हें बोनस दें, कमीशन दें अच्छा काम करने का, उन्हें प्राइस दें मतलब कि अच्छा काम करने पर उनका सम्मान करें, उनकी सजेशन एंड एडवाइसेस को हम लें, दैट इज़ द फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफाइन कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स। वन पर्सन passes a clear information to the another person so that the latter understand the objective of communication and act on। कि कोई एक पर्सन जो है वो मैसेज दूसरे पर्सन को पहुँचाए, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्ड्स, लेटर, इंस्ट्रक्शंस एंड ओपिनियन एज पर द न्यू मैन एंड समर। कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियन और इमोशंस बाय 2 और मोर पर्सन। कि जब हम कम्युनिकेशन जो है वो 2 लोगों से ज़्यादा के बीच में कम्युनिकेशन होता हो, इफेक्टिवली होता हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ कम्युनिकेशन। अब हमें यहाँ पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, क्लियर वर्ड्स एंड लैंग्वेजेस, two-way process, continuous process, many equipments, many types and methods, motivating activities and relation with administrative process, and last point is human process। यहाँ पे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि अगर हमें जो भी काम करना है तो वो इजीली हम गोल ओरिएंटेड कर सकते हैं। फिर क्लियर लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए। टू वे प्रोसेस है कि अगर हम मैसेज सेंड करते हैं तो सामने वाला हमें फीडबैक देता है। कंटिन्यू प्रोसेस है, अलग अलग मेथड्स हम ये कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वर्कर्स मोटिवेट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के साथ भी वो रिलेटेड है। देन आफ्टर सिक्स्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड्स ऑन द intelligence and loyalty of the officers and employees. Communication is a human activity, so human limitations such as affections, mistakes, intimations, misunderstanding, distrust, fears, etc. come as a barrier to it. Such a barriers can be as follow. First is lack of planning, second is faulty translations, unclear message, unclear assumptions, shortage of time, overburden of communication, ignorance towards messages, improper selection of media, distrust and fear। कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हम किसके साथ करते हैं, ह्यूमन रिलेशन के साथ करते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं कि हमारी प्लानिंग प्रॉपर ना हो, हमने ट्रांसलेशन प्रॉपर ना किया हो, मैसेज क्लियर हमारा ना आया हो, असम्पशंस जो है वो हमने क्लियर ना की हो, कि फिर टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा कम हमें मिला हो, कभी कभी एक ही पर्सन के पास एक से ज़्यादा मैसेज कन्वे करने का ओवरबर्डन आ गया हो, हम मैसेज को इग्नोर करें, या सिलेक्शन प्रॉपर मीडिया हमने सिलेक्शन ना किया, और लोग जो वर्कर्स हैं उनके बीच में डिस्ट्रेस एंड फियर की फीलिंग हो, एट दैट टाइम जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो हमारी सक्सेसफुल नहीं जाती। तो ये थी हमारी बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और इसी के साथ यहाँ पे हमने हमारा ये जो चैप्टर नंबर 6
6 था, उसका भी हमने सेक्शन ई का रिवीजन भी कंप्लीट किया। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये जो रिवीजन है FA2 का वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आप सबको ये सारे रिवीजन के बारे में क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो रिवीजन है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना भी है। थैंक यू।